Hello guys, good morning. Let's start our session. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. On Unacademy you have many benefits. One of the most important benefit of Unacademy is that you get daily live classes. Structured courses are available on Unacademy, particularly on Plus and Iconic. Live test and quiz is also available on Unacademy, like you are experiencing live test and quiz of prelims every day at 8 a.m. in case of my profile. Then everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything. In case you don't have Unacademy learning app, you need to download this Unacademy learning app. You can get too much free सेशंस और स्पेशल क्लासेस, प्लस अगर आप प्लस या आइकॉनिक पे जाते हो तो आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड वे में या स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको कोचिंग मिल जाएगा, ठीक है. Then this is about me guys, you already know about me. I hope I am audible and visible to each and every student. Please let me know in the comment box, am I audible and visible? Fine. This is my Telegram channel. On this Telegram channel I am uploading all the files in the format of PDF. तो आपको सारी notes available होती है in the format of PDF, and this is my Unacademy profile. You need to follow this profile so that जब भी मैं क्लासेस लूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, and you need to dedicate your hats to me on Unacademy profile. Okay, we are going ahead. Okay, great. Thank you, Ramandeep. These are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them. When you are going for a plus subscription, a 12-month plus subscription normally costs you 49,500, but after applying this code SKUS, you will get 10% discount and you will be paying 44,550 rupees only. Thank you, Navisha. In case of Iconic subscription, normally you pay 69,500 for 12 months, but after applying this code SKUS, you will be paying only 62,550 rupees because you got 10% discount by using this code SKUS. Okay, till 31st October, if you are getting subscription of 12 months, in that case you will get access to GS plus optional both, but after 31st October you will be getting access to GS by paying different amount and to optional by paying different amount. तो cost बढ़ जाएगी because optional included नहीं होगा GS में. These are the optionals that are available with Unacademy, and many more we are adding into the list. This is the optional fees and this is the UPSC CSE GS fees. Okay, fine. Now guys, there was one news which is related to long-term memory. Fine. See guys, every human being has two types of memory. One is short-term memory, that is like we remember few things every day. There are so many things that are happening, but we do not remember each and everything, so that goes into the short-term memory. And another is long-term memory. Most of the study or most of the experiences, whether it is a bad experience or a good experience, everything, whether a bad or a good experience, everything goes into a long term memory. And most of the जो मतलब memories होती है जो हमें problem create कर सकती है या हमारे mental health को affect कर सकती है, ऐसी memories हमारा brain try करता है short term में रखने के लिए. तो इससे क्या होता है, हम bad things भूल जाते हैं and it help us to remain healthy. क्लियर. सो दिस इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे एक कंसेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन की है, डिस्कस की है, वो ये है कि न्यू रिसर्च में ये रिवील हुआ है दैट न्यूरॉन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो बेसिकली और ओरिजिनली every memory that is created, that is in the form of short term only, but which memory should be converted into short term to long term. शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में मेमोरी कन्वर्ट करने के लिए कौन से न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल है, ये इस स्टडी में हमने फाइंड आउट किया है. तो यहाँ आप देख लीजिए, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग अ मेमोरी ट्रेस, while inhibitory neurons black out background noise allowing long term memory to be formed. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ याद रखिए, both the excitatory neurons and inhibitory neurons both are responsible for creating long term memory, but they play different roles. How? These excitatory neurons, they will create a memory trace, that is they will create a memory,
एंड ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है ना, दे विल रिमूव द बैकग्राउंड नॉइज। अब बैकग्राउंड नॉइज का मतलब क्या है, देखिए आपको ये याद जरूर आता, बहुत बार ये होता है ना कि आपको ये याद जरूर आता है कि कुछ लोग थे, लेकिन एग्जैक्टली कौन था ये हमें याद नहीं आता, या फिर हमें ये याद आता है कि टेबल पे वॉलेट था लेकिन टेबल पे और बहुत सारी चीजें थी, हमें वो याद नहीं आती। तो ये जो बैकग्राउंड नॉलेज है या बैकग्राउंड नॉइज है, वो रिमूव करने का काम इनहिबिटरी, वो रिमूव करने का काम कौन करता है, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स करते हैं, और एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एक्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं। सो फ्रॉम दिस स्लाइड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, excitatory neurons and inhibitory neurons are responsible for creating long term memory, or they are responsible for converting short term memory into long term memory. Clear ये वाला point? अब यहाँ से we are going to the basics. Those students who are not from arts, who are not from science background, or who never studied biology after 10th, for them it is important. One by one, अब मैं जो आपको इस स्लाइड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, this can be asked in your UPSC prelims examination. Okay, it can be asked definitely in your UPSC prelims. What? Number one, what is a neuron? So neuron is a basic working unit of the brain. Number one, what is neuron? It is the basic unit or functional unit of the brain. Second, what is neuron? It is a specialized cell. So neuron is a type of cell, और न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल। जैसे देखिए जो लीवर में जो सेल्स होती है वी कॉल देम हिपेटोसाइट, द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द बोन वी कॉल देम ऑस्टियोसाइट, द सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द कार्टिलेज वी कॉल देम, देयर आर डिफरेंट नेम्स, मुझे अभी वो कार्टिलेज वाला याद नहीं आ रहा। देन सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, योर हार्ट, वी कॉल देम cardiac cells. In the same way, the specialized cells which are present in the brain, we call them neuron, and they are the basic unit of the brain. So number one, basic unit. Number two, specialized cells. Then neurons are the cells within the nervous system. हमारा brain is part of the nervous system, so neurons are the specialized cells which are responsive or which are basic unit of the brain. These are the cells of the nervous system. Clear? यहाँ पे ये क्लियर हुआ, स्पेशलाइज्ड सेल एंड बेसिक वर्किंग यूनिट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. नंबर वन, dendrites. Okay, number two, you can observe what exact dendrite looks like in the image. The second thing that you need to remember is a cell body. So neuron has a cell body, and in that cell body you can find the nucleus, and inside this nucleus you will find DNA, that is genetic material. And the third thing that you need to remember is axon. So a neuron, structurally neuron is divided into three parts, dendrites. You can see these are the dendrites. These are the projections that originate from the cell body. Cell body से जो originate होते हैं वो ये projections है. Then this is axon. It is like tail like structure, इसे axon कहते हैं, और axon के end में भी projections है, उसे हम कहते हैं axon terminals. We call them axon terminals. Clear? So dendrite, cell body and axon, ये तीन clear हुए. These are the three parts of the neuron. Fine. हर एक न्यूरॉन, हर एक पार्ट का रोल अलग होता है. जैसे यहाँ पे नेक्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ अगर कर दूं, दिस इज सेल बॉडी, these are dendrites, this is axon, and this is axon terminal. Then again this is cell body, these are dendrites, and this is axon, and these are the axon terminals. यहाँ आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो axon terminal of one neutron is in contact with the dendrites of another neutron. Axon terminal of one neutron is in contact with the dendrites of another neutron. इनके बीच में जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं सिनेप्स. ओके, और इस सिनेप्स में अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं, वी कॉल देम न्यूरोट्रांसमीटर्स. फाइन. सो दिस इज हाउ न्यूरॉन्स आर अरेंज्ड. फ्रॉम दिस स्लाइड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड द एक्सॉन. क्लियर? ये तीन पार्ट है न्यूरॉन के. नेक्स्ट, फॉर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एटलीस्ट, देखिए अब यहाँ पे होता क्या है ना, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. यहाँ पे मैं आपको अलग अलग टाइप बताने वाला हूँ. देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन द फंक्शंस और द वर्क दे परफॉर्म. ओके, all these three types of neuron that I am going to discuss, they are basically from the spinal cord. क्योंकि ब्रेन में इतने ज़्यादा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है, इवन टुडे
Scientists are not aware of different types of neurons that are present in the brain. Fine. So spinal cord में 3 neurons है. One is sensory neuron. Can anybody tell me the names of 5 sensory organs? Second is motor neuron, and the third type of neuron that is present in the spinal cord is interneurons. Fine. So yes, I am waiting for your answer related to sensory organs. There are 5 sensory organs. I hope you already know them. The number 1, the first sensory organ is the thing that you are listening to. जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आप लोग जिससे सुन रहे हो, that is ear. Ear is a sensory organ because it senses sound. Then second thing, you are observing through your eyes. The second sensory organ is eye, which is responsible for vision. The third sensory organ is nose, which senses the smell. Fourth sensory organ is tongue, which is responsible for the taste. And the fifth sensory organ is skin, which help you to find out the temperature, pressure and the touch. ये अलग अलग सेंसेस के लिए 5 सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है. तो these sensory neurons are linked to these 5 sensory organs. Okay, these sensory neurons are linked to these 5 sensory organs, and these motor neurons, they are responsible for actual action. For example, right now if I remove this spect and I am doing this to my eyes, तो ये जो मेरी हैंड की मूवमेंट हो रही है ना, दिस मूवमेंट ऑफ माई हैंड, it is ordered by the motor neurons. The message to move my hand, this message is carried from the brain or spinal cord to the muscles of my hand through motor neurons. That's why we call them motor neurons. Okay, and these interneurons, they are present between the sensory neurons and the motor neurons. These are present in the sensory neurons and the motor neurons. अब यहाँ पे मैं एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन आपको देने वाला हूँ. Clear distinction. Okay, number 1, sensory neurons, they carry information from the sensory organs. Sensory neurons, they carry information from the sensory organ to the brain via spinal cord. This information is carried to the brain via spinal cord because we are saying कि sensory neurons are present in the spinal cord. And second जो आपने देखा, उन्हें हमने कहा motor neurons. These motor neurons, they carry information from the brain. They carry information from the brain to muscles, or in some cases organs also, via again spinal cord. And इन दोनों न्यूरॉन के बीच में, बिटवीन अ सेंसरी न्यूरॉन एंड अ मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक न्यूरॉन प्रेजेंट होता है. वी कॉल दैट इंटर न्यूरॉन. सो इज इट क्लियर? सी गाइज, आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट इन यूपीएससी प्रीलिम्स इफ दे वांट टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन बेसिक्स ऑफ नर्वस सिस्टम, दे विल डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड फंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूरॉन. आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर कि व्हाट एग्जैक्टली सेंसरी न्यूरॉन डज, what exactly motor neuron does, and what exactly interneuron does. We are going to the next slide. Now, on the basis of this axon, we have different types of neuron. This you need not to remember, but because it is in the process of information I am explaining you, it is a unipolar neuron because it has axon जो एक ही एंड पे है. ये बाइपोलर न्यूरॉन है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, और इन बिटवीन सेल बॉडी है. राइट, दिस इज बाइपोलर. स्यूडो यूनिपोलर का मतलब क्या होता है? सेल बॉडी तो एक ही है लेकिन एक्सॉन के देखिए 1 और 2 पार्ट हो गए हैं, तो ये स्यूडो यूनिपोलर है. यूनिपोलर है लेकिन स्यूडो है. एंड लास्ट में आता है मल्टीपोलर. मल्टीपोलर में आप देख सकते हो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी में ये डेंड्राइट्स है, मल्टीपल डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल है. हमने यही न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था. मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स दे आर ऑफ मल्टीपोलर टाइप. मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स दैट आर नोन टू अस दे आर मल्टीपोलर. तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ, व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन, व्हाट इज मोटर न्यूरॉन. पल्लवी शर्मा, सेंसरी
और मोटर न्यूरॉन, इनके बीच में जो न्यूरॉन होता है उसे कहा जाता है इंटर न्यूरॉन, एंड दिस इंटर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। ये और ज्यादा क्लियर होगा जब हम स्पाइनल कॉर्ड पे आएंगे, अभी इतना याद रखिए, व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन, व्हाट इज मोटर न्यूरॉन, व्हाट इज इंटर न्यूरॉन, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड स्यूडो यूनिपोलर। दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स, दे विल नेवर आस्क दिस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। वी आर गोइंग अहेड। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस when exactly these sensory neurons work? सेंसरी न्यूरॉन काम कब करते हैं? सो दिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल एक्टिवेट सेंसरी न्यूरॉन्स। फॉर एग्जांपल, अभी राइट नाउ अगर मैं, ये पेन है और अगर मैं इस पेन का या पेन टैबलेट का, ये पेन है, इसे अगर मैं मेरे स्किन पे प्रेस करूं तो मेरी स्किन में जो टच का सेंसेशन आ रहा है ना, दिस इंफॉर्मेशन कि दैट समथिंग पॉइंटिंग इज टचिंग योर स्किन ऑन द फोर आर्म, this information is carried from this forearm via spinal cord to the brain, और brain ने interpret किया, okay this is a pointing object and the amount of pressure this pointing object is putting on the skin that is not dangerous। तो ये इंफॉर्मेशन किसने कैरी की? सेंसरी न्यूरॉन ने। या फिर राइट नाउ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, तो ये लेक्चर देखते वक्त आप सामने पढ़ रहे हो सेंसरी न्यूरॉन, या फिर मैंने ये लाइन ड्रॉ की रेड कलर की, तो दिस इंफॉर्मेशन की देयर इज अ रेड कलर्ड लाइन बिलो द वर्ड सेंसरी न्यूरॉन, दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय द optical nerve, which is a group of sensory neuron from your eyes to the brain, and then brain interpreted, okay it is red in color and it is underlined so that you can observe, actually see the sensory world। then आपकी जो ear है, मैं जो बात कर रहा हूँ ये आपके ear सुन रहे हैं, and there is one nerve in our ears or neurons, sensory neurons which are present in the ear, they are carrying the information or the words that I am speaking, these words are converted into electrical impulse into our inner ear, and then this information is carried to the brain, this information is carried by the sensory neurons। या फिर अभी आप मेरा क्लास करते करते सपोज कोई खाना खा रहे हो, सपोज आप अपम खा रहे हो, इडली खा रहे हो, या फिर कुछ तीखा खा रहे हो, पानी पूरी खा रहे हो, तो आपकी जो टेस्ट बर्ड्स है ना, which are actually the ends of the sensory neurons, they will tell the brain what exactly the test is, whether it is स्वीट या फिर जो भी टेस्ट टाइप है वो सब बताएगी। तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, these sensory neurons are activated by the input from the environment। agreed? मैंने पांचों के आपको एक्सप्लेनेशन दिए। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कैन नॉट वर्क, सेंसरी न्यूरॉन्स they cannot work if there is no input from the external environment। without input from the external environment, sensory neurons cannot work। got it guys? so what sensory neurons are doing? they are carrying the information of input from the environment to your brain, okay, to your brain। so this is about sensory neuron, this line, sensory neurons are activated by sensory input from the environment। we are going ahead, okay। sensory neurons, inputs that activate sensory neurons, they can be physical, like this is physical input, this is physical input, whatever I am doing on my forearm, this is physical input, or they can be chemical input। अब chemical input का मतलब क्या है? आपने एकदम मीठी सी पानी पूरी ली और आपके माउथ में वो चली गई, अब वो जो टेस्ट है ना, दैट इज केमिकल्स, वो जो टेस्ट है दैट टेस्ट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इनपुट। सो सेंसरी न्यूरॉन्स गेट इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इनपुट और केमिकल इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे फिजिकल इनपुट में साउंड जो अभी आप सुन रहे हो, मेरी बहुत ही प्यारी सी आवाज जो लता दीदी और मोहम्मद रफ़ी से भी ज्यादा प्यारी है, लॉल ठीक है। दिस साउंड इज अ फिजिकल इनपुट, touch is a physical input which is not possible between you and me, heat is a physical input, you can simply touch your smartphone। आपका स्मार्टफोन हाथ में लीजिए और अगर आप बहुत देर से वो स्मार्टफोन चला रहे हो तो इट विल हीट, तो हीट इज अ फिजिकल इनपुट। और इवन लाइट, ये जो आपको दिख रहा है ना, वॉट एवर यू आर एबल टू सी थ्रू योर आईज, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन of light। so these are the examples of physical input or taste and smell। remember, taste
and smell. These are chemical inputs from the external environment. So whether it is a physical input or chemical input, this input is responsible for activating sensory neurons. Okay, and most of sensory neurons are pseudo unipolar. Most of the sensory neurons are pseudo unipolar, not at all important for your preliminary examination. What is important for your prelims is what exactly sensory neuron is and what exactly sensory neuron does. We are going ahead. ओके चलिए आगे चलते. आई होप यू गॉट फेयर एंड क्लियर आइडिया अबाउट सेंसरी न्यूरॉन एंड व्हाट इज फिजिकल इनपुट एंड व्हाट इज केमिकल इनपुट. फिजिकल इनपुट और केमिकल इनपुट का अगर आपको प्रॉपर और फेयर आइडिया आ गया है तो वी आर गोइंग अहेड. जस्ट से सो दैट सर यस वी गॉट द फेयर आइडिया अबाउट फिजिकल इनपुट एंड केमिकल इनपुट. वी आर गोइंग अहेड. हियर यू गो. सी दिस इज it is very simple. This is the टच. आपको टच किया, ये रहा आपके ये सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं और इन्होंने इंफॉर्मेशन कैरी की अप टू स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से फिर से ये न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन कैरी की कहाँ? अप टू ब्रेन. ब्रेन तक इसने ये देखिए इसने ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कैरी की और फिर आपके ब्रेन को पता चला कि सम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट इज टचिंग योर हैंड. सम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट इज टचिंग योर हैंड. और उसी टाइम ओके नॉक्सियस स्टिम्युलस की ये बात कर रहे हैं. ये इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कैरी करता है. मुझे बस इतना आपको बताना था. टच ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग अहेड. अभी मोटर न्यूरॉन. व्हाट एग्जैक्टली मोटर न्यूरॉन डज? First, they are part of the central nervous system. Motor neurons of the spinal cord. Okay. Again, remember the sensory neurons we discussed right now. These neurons are of spinal cord. Again, the motor neurons that we are going to discuss, they are again part of the spinal cord. They are the part of the central nervous system and they connect to the muscles. I already told you, motor neurons, they carry information from the brain to the muscle. They carry information from the brain to the glands. For example, liver or pancreas. They carry information from the brain to the organ, for example heart. तो organ, muscle या gland या थ्रू आउट बॉडी इंफॉर्मेशन ब्रेन से इन पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन्स करते हैं. ओके. इज इट इंस्टेंट रिएक्शन और टेक्स सम टाइम टू ब्रेन? रमनदीप, इट टेक्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलाई. इट टेक्स फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड. ठीक है. These neurons transmit impulses from the spinal cord. See, these neurons transmit impulses from the spinal cord to skeletal muscles, that is muscles which are attached to the brain, or smooth muscles, that is muscles which are present in the organs, or directly control all our muscle movement. तो अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ना, देख लीजिए. This is muscle movement. This is being controlled by the motor neuron through this is being controlled by the brain through motor neuron. Okay. Then मैंने ये जो किया देखिए, this is done by the muscles of my hand. ये मैं स्पेक लगा रहा हूँ. This is controlled by the brain through motor neurons. So each and every muscle movement, ये भी जो मैं कर रहा हूँ या even अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, these are muscles which are involved. मेरे लिप्स को मूव कर रही है मसल्स है, मेरी जॉ को मूव कर रही है वो मसल्स है, देन मेरी टंग को मूव कर रही है वो मसल्स है. तो ये सारी मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है. थ्रू विच न्यूरॉन्स? इट इज कंट्रोलिंग इट थ्रू मोटर न्यूरॉन्स. सो रिमेंबर, मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मसल्स इन आवर बॉडी. मूवमेंट is not possible without muscles in our body, and these muscles are controlled by the brain through motor neurons. Clear? So inputs are carried by the sensory neurons and output is given by the motor neurons with the help of muscles. Hello Aditya, we are going ahead. So motor neuron भी दो टाइप के हैं. You need to अगेन जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. ये जो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में जो बताया ना, दिस इज इनफ फॉर योर प्रीलिम्स 2020. दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट चलिए देख लेते हैं ना, देखने में क्या हर्ज है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर न्यूरॉन. एक न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जा रहे हैं? मसल के पास. अ मोटर न्यूरॉन विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, उसे हम कहते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन. And a motor neuron which is traveling from the brain to spinal cord, इसे आप कहोगे अपर मोटर न्यूरॉन.
This is lower motor neuron and upper motor neuron. Sir, neuron involves in PNS, ANS is of different types then. Aniket Ahire, no, each and every neuron that is used in PNS, ANS or CNS, they are all neurons, but उसमें मेजर डिफरेंस नहीं होता. उनमें डिफरेंस ये वाला होगा, ये वाला यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर और मल्टीपोलर. लेकिन जो भी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आइदर सेंसरी न्यूरॉन है या मोटर न्यूरॉन्स है. ठीक है अनिकेत. सो ये लोअर एंड अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, दे आर मल्टीपोलर. देखिए मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर. सेंसरी न्यूरॉन क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स यहां बता दीजिए. अगर मैं ये कह रहा हूं कि सॉरी, motor neurons are, most of the motor neurons are multipolar. So what about sensory neurons? Most of the sensory neurons are, most of the sensory neurons are, बताइए क्या होते हैं most of the sensory neurons? Most of the sensory neurons are pseudo unipolar, right? Most of the sensory neurons are pseudo unipolar. We are going ahead. कितना सिंपल है ये ना, हम डिफिकल्ट कर लेते हैं. और इट इज बिकॉज ऑफ दीज सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन वी आर एबल टू लर्न. हम पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे आगे चलते हैं. यहाँ पे ये देखिए, ये मोटर न्यूरॉन ही है, ये वाला जो है ना, ये मोटर न्यूरॉन है. मैं शो करता हूँ आपको हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. वेरी गुड रमनदीप एंड अनिकेत. देखिए मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ. रिफ्लेक्स हैमर, ठीक है, यहाँ पे इसने टच किया, आपके ये सेंसरी न्यूरॉन है, स्ट्रेच रिसेप्टर. सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन कैरी की फ्रॉम द नी टू द स्पाइनल कॉर्ड. और यहाँ एक बात याद रखिए, रिफ्लेक्स है ना, ये रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आता है. रिफ्लेक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कभी भी ब्रेन तक नहीं जाती. कोई भी रिफ्लेक्स हो, मैं आपको अलग अलग रिफ्लेक्स, इसे नी जर्क रिएक्शन कहते हैं. तो ये रिफ्लेक्स है. रिफ्लेक्स में क्या होता है, हमारी बॉडी के पास टाइम नहीं होता टू कैरी दैट इंफॉर्मेशन अप टू ब्रेन. देन ब्रेन विल प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड देन इट विल गिव ऑर्डर्स टू द मोटर न्यूरॉन एंड देन विल रिएक्ट. इतने टाइम में हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है. तो वो अवॉइड करने के लिए क्या होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी प्रोसेसिंग है ना वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हो जाती है. और फिर ये सेंसरी न्यूरॉन हुआ. सर फॉर गिविंग इंस्टेंट रिएक्शन टू एनी एक्शन द कमांड वी गेट इज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड बट आवर ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर. सो हाउ कैन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट हियर? Kumkum Devi, it is emergency. These are emergency situations. In emergency situations, spinal cord itself take decisions. That's what I am explaining. So sensory information यहाँ तक आई और फिर ये मोटर न्यूरॉन ने, देखिए स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन निकले एंड सी these motor neurons they are reaching to the muscle. वो मसल के पास गए और इस मसल ने आपके लेग को स्ट्रेच किया. Stretch receptor. So stretch receptor is the end of the sensory neuron and in muscles को motor neuron information कैरी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से. अब मुझे बताइए, ये जो मोटर न्यूरॉन है, दीज मोटर न्यूरॉन दे आर लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन. अभी मैंने आपको बताया था दीज आर लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन. सर इज इट ट्रू दैट वंस गेट डिस्ट्रॉय न्यूरल सेल्स कैन नेवर डिवाइड? यस अनिकेत Ahire, once neurons die they will never re-emerge. एक बार डेथ होगी बात खत्म. So spinal cord is also having functions like brain. Yes, but in emergency situations, कुमकुम देवी, जब सोच समझकर हमें करना है तो ब्रेन, बिना सोचे समझे करना है तो स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. If a dog chases us, we react with reflex. Yes, सुष्मिता मान, वो उस टाइम के रिफ्लेक्स में बता दो आपको. कोई डॉग अगर आपके पीछे आ रहा है, आपको स्वेटिंग आती है, दैट इज अ रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे. आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स ऑन द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. फिर आपके प्यूपिल जो है ना वो डायलेट हो जाते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. और आपके मसल्स में देखिए, हम मराठी में उसे बोलते हैं पायाला गोळे आले, मतलब आपके मसल में जान ही नहीं रहती, दैट इज एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. यस, कुछ कुछ लोगों को तो देखकर यूरिनेशन भी हो जाता है, दैट इज एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. दीज आर ऑल examples of reflex. So each and every reflex is processed at the level of spinal cord. Information is carried by the sensory neurons up to spinal cord and it is given back to the muscles with the help of motor neuron, that to lower motor neurons. Clear? और यहाँ आप देख लीजिए, ये ग्रीन दिख रहा है सभी को, interneuron. This neuron is carrying information from the sensory neuron to motor neuron. Sensory neuron is carrying information from the input that is given by the environment
up to the spinal cord. In spinal cord, information is carried from the sensory neuron through interneuron to motor neuron. And यस कुमकुम देवी, इस केस में प्यूपिल डायलेट होना मतलब एक्सपांड होना, और फिर ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन ने कैरी की और फिर रिफ्लेक्स दिया. तो देखिए इंटर न्यूरॉन्स दे आर connection between the sensory neuron and the motor neuron. अनिकेत अहिरे, sir, why we experience current sensation when something hit our elbow? That is because अनिकेत ये जो आपका एल्बो है ना, यहाँ पे कुछ नर्व्स है, ठीक है, यहाँ नर्व्स होती है. नॉर्मली मोस्ट ऑफ द नर्व्स इन आवर बॉडी दे आर कवर्ड विद द स्किन, मसल्स एंड द फैट, लेकिन यहाँ पे नर्व सीधा बोन के पास है, तो यहाँ पे आप सीधा नर्व को टच कर सकते हो. और नर्व इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में कैरी करती है? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. तो यहाँ पे अगर आप मारते हो तो वो नर्व डैमेज भी हो सकती है. बहुत ज़्यादा जोर से अगर यहाँ मारा जाए ना तो दैट नर्व विल डैमेज. फिर उसके बाद आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है लोअर हैंड में, जैसे यहाँ पे आपको कुछ सेंसेशन नहीं आएगा. मराठी में हम जैसे आप बोलते हो ना मुंग्या येणे, दैट कैन हैपन हियर. ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पे नर्व है, ओपन है ज़्यादा, उसे प्रोटेक्शन नहीं, दैट्स व्हाई इट हैपन्स. सो आई होप यू गॉट फेयर आइडिया व्हाट एग्जैक्टली सेंसरी न्यूरॉन इज. I hope you got fair idea what exactly motor neuron is. I hope you got fair idea what exactly interneuron is, and I hope you got fair idea where exactly reflex action is processed. Where exactly reflex action is processed. Plus I hope you got fair idea where exactly we can find lower motor neurons, then where exactly we can find upper motor neurons. Okay, upper motor neurons. Clear? Understood? चलिए, we are going ahead. So this is about the reflex action guys. This is about the reflex action. मुझे इस स्लाइड से आपको बस ये एक्सप्लेन करना था, what is interneuron. मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया. We are going ahead. Now see our human motor system. Human motor system में these are the motor neurons which are carrying information from the brain to spinal cord. इसे हमने क्या कहा? Upper motor neurons. Upper motor neurons. These neurons get damaged in case of ALS, amyotrophic lateral sclerosis. It is a degenerative disease. Then this information from the spinal cord is carried up to the muscles. इसे आप कहते हो lower motor neurons. देखिए even lower motor neurons are also damaged in ALS. ALS में lower motor neurons भी damage होते हैं. अब मैं यहाँ पे आपको explain करने जा रहा हूँ what is ALS because recently Stephen Hawking died and he had this disease. ALS ये disease Stephen Hawking को था, ठीक है. So amyotrophic लैटरल स्क्लेरोसिस, और ये प्राइमरी PLS का मतलब होता है प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस. द मीनिंग ऑफ PLS इज प्राइमरी लैटरल स्क्लेरोसिस. इस स्लाइड से एक पॉइंट आपको प्रीलिम के लिए याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ. एवरीबडी गॉट व्हाट वेयर एग्जैक्टली अपर मोटर न्यूरॉन्स आर, वेयर एग्जैक्टली लोअर मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट. अब यहाँ मैं दो चीजें बता रहा हूँ, ALS एंड PLS both are lateral sclerosis. Okay, this is primary lateral yes Aniket Ahire, but in case of Alzheimer's disease neurons in brain are dead. The nerve cells which are present in the brain they die. In case of ALS and PLS, motor neurons which are actually not present in the brain, they carry information from the brain to the spinal cord and from spinal cord to the muscle. They are damaged. So PLS primary lateral sclerosis, primary lateral sclerosis, and ALS का लॉन्ग फॉर्म होता है amyotrophic lateral sclerosis. What you need to remember for your preliminary examination is in case of ALS and PLS, in case of ALS as well as PLS, motor neurons are damaged. याद रहेगा, in case of ALS as well as PLS disease, motor neurons are damaged. Motor neurons are damaged. अब मुझे बताइए on the basis of information that you have, if motor neurons are damaged, will the muscles of that patient move?
Can that patient move his muscles if motor neurons are damaged? So, and these motor neurons, they get damaged slowly. That's why we say कि ALS or PLS, these are slow developing degenerative diseases. ALS and PLS are slow developing degenerative diseases. Clear? Clear? ओके गुड. सो देखिए, मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाना, इससे क्या होता है, मसल्स विल नॉट बी एबल टू मूव. और अगर मसल्स मूव नहीं हो रही है तो व्हाट विल हैपन. देखिए, आपने देखा होगा दोज पीपल हु डू एक्सरसाइज, उनका मसल मास देखिए, एंड दोज पीपल हु आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी नो एक्सरसाइज, उनका मसल मास देखिए. होता क्या है ना, इफ यू आर नॉट यूजिंग अ पर्टिकुलर मसल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, दैट मसल विल स्लोली degenerate, that muscle will slowly degenerate, and at the end that muscle will die. So if there is no movement of muscle, that muscle will die. That's why we in case of ALS slowly क्या होता है, मसल की डेथ होती है, इसलिए इसे slowly degenerating disorder कहते हैं. तो remember from this slide only one point you need to remember. In case of ALS as well as in case of PLS, what dies? There is a damage to motor neurons. There is a damage to motor neurons. दो टाइप के मोटर न्यूरॉन होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, लोअर मोटर न्यूरॉन ब्रेन टू मसल्स. That's it. That's it. We are going ahead. What is amyotrophic lateral sclerosis? This disease was like Stephen Hawking was, he had this disease. It is a nervous system का तो है ही, लेकिन ये hereditary भी है. It is a hereditary disease of nervous system. Okay, clear? So देखिए, amyotrophic lateral sclerosis is a progressive, मतलब ये slowly progress होता है, एकदम से उस पर्सन को डिसीज नहीं होता, slowly उसमें डिसीज के सिम्टम दिखना स्टार्ट होता है. Progressive nervous system disease that affects nerve cell. Now you know which nerve cells are affected by amyotrophic lateral sclerosis. Can anybody answer? Which nerve cells or neurons are affected by ALS or amyotrophic lateral sclerosis? It affects the nerve cells of the brain as well as nerve cells of the spinal cord, and because nerve cells of the brain and spinal cord are affected, it causes loss of muscle control and muscle movement. Okay. Yes, Ramandeep, if a particular muscle is affected, उस particular part का paralysis होगा. Yes, correct. Clear हो गया ये? Very good. Motor neurons or motor nerve cells are affected in case of amyotrophic lateral sclerosis. Now, this point is very important for your preliminary examination. Single liner पूछा जा सकता है. Another name of ALS or amyotrophic lateral sclerosis is Lou Gehrig's disease. Lou Gehrig's disease. तो फिर स्टीफन हॉकिंग को कौन सा डिसीज था? लौ गेरिग्स डिसीज. स्टीफन हॉकिंग को कौन सा डिसीज था? अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस. इस डिसीज में होता क्या है? मोटर न्यूरॉन्स गेट डैमेज्ड. उसकी वजह से होता क्या है? अ पर्सन लूजेस द कंट्रोल, मसल कंट्रोल, एज वेल एज पर्सन स्लोली, द मसल्स ऑफ दैट पर्सन स्लोली डाइज. नाउ व्हाई वी कॉल दिस डिसीज लौ गेरिग्स डिसीज? बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्सन इज लौ गेरिग and he was a baseball player. ये कौन था? बेसबॉल प्लेयर था, and he was diagnosed with this disease for the first time. That's why we named this disease after this person, Lou Gehrig disease or amyotrophic lateral sclerosis, ALS. Again, Stephen Hawking also had this amyotrophic lateral sclerosis. So Hawking had a rare early onset slow progressing form of motor neuron disease, जिसे हम MND कहते हैं. MND, motor neuron disease, also known as ALS or amyotrophic lateral sclerosis, or also known as Lou Gehrig disease. ये देखिए, एक ही डिसीज की ये तीन नाम है. 3 names of a single disease, okay, which leads to neurodegeneration or death of the motor neurons, and as a result
उसके न्यूरॉन्स की डेथ होती है एंड स्लोली इट पैरालाइज्ड हिम ओवर डिकेड्स। जैसे अभी रमनदीप ने पूछा था कि इस केस में पैरालिसिस होता है, तो यस रमनदीप, इस केस में पैरालिसिस होता है। जैसे स्टीफन हॉकिंग को इस डिसीज ने क्या कर दिया था, पैरालाइज्ड कर दिया था। व्हाट अ कूल लेक्चर, मैं तो इस लेक्चर को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आपको कितनी प्रॉपर और पर्टिकुलर वे से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ओके Okay guys, sorry, there was one very important message from the team, that's why I need to reply that message. Okay fine, clear हो गया ये अमायोट्रोपिक लैटरल स्क्लेरोसिस, सभी को समझ में आ गया, स्टीफन हॉकिंग और लो गेरिस। देन आते हैं हम इंटरन्यूरॉन पे। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इंटरन्यूरॉन, है ना, सभी को पता है। इंटरन्यूरॉन, दीज आर द वंस इन बिटवीन द, दे connect spinal motor and sensory neuron, they connect the motor neuron to sensory neuron in spinal cord, that's it, spinal cord, that's it. Okay, ultimate point, hi ultimate point, what is your name, ultimate point, what is your name, बताओ मुझे। चलिए आगे फिर से एक बार ये देख लीजिए, this is receptor, this is sensory neuron, then this sensory neuron will carry information up to spinal cord, then this is interneuron, you can see, and this is motor neuron, motor neuron is carrying information up to the muscle। और एक important information, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज अफरेंट न्यूरॉन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो आपके इफेक्टर या मोटर न्यूरॉन्स है, इन मोटर न्यूरॉन्स को आप कहते हो इफरेंट न्यूरॉन्स, दे आर नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स। क्लियर हो गया, क्लियर सभी को, एफरेंट न्यूरॉन किसे कहते हैं और इफरेंट न्यूरॉन किसे कहते हैं, सभी को समझ में आ गया। वी आर गोइंग अहेड। तो यहाँ इस इमेज से आप देख सकते हो व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन, व्हाट इज मोटर न्यूरॉन, व्हाट इज इफेक्टर न्यूरॉन, व्हाट इज एफरेंट न्यूरॉन एंड व्हाट इज अ इंटर न्यूरॉन। अब यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रही होगी, राइट, वन इज ग्रे मैटर and another is white matter. Does anybody have any idea what exactly white matter is and what exactly gray matter is? So this white matter is the axon of neurons. Neurons में तीन चीजें देखी थी ना हमने, कि कौन कौन सी तीन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के, प्लीज टेल मी द थ्री पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। कौन कौन से पार्ट है न्यूरॉन के, तीन, एक हमने देखा था सेल बॉडी, दूसरा था डेंड्राइट और तीसरा था एक्सॉन। तो ये जो एक्सॉन्स है ना, इस एक्सॉन के मतलब बंडल को हम व्हाइट मैटर कहते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स 2020, प्री 2020 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रुशियल है। सो इसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं, एक्सॉन। और जो ग्रे मैटर है ना, इट इज सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, ग्रे मैटर। सेल बॉडी और डेंड्राइट से बनकर ग्रे मैटर बनता है और व्हाइट मैटर एक्सॉन से। न्यूरो कॉम्बिनेशन इन ब्रेन लुक्स लाइक ग्रे एंड व्हाइट मैटर, सेल बॉडी इज ग्रे, वेरी गुड सुधा, डेंड्राइटिक एक्सॉन सेल बॉडी, ओके, एक्सॉन इज व्हाइट मैटर एंड सेल बॉडी एंड डेंड्राइट इज ग्रे मैटर, बस इतना आपको याद रखना है। शुड वी गो अहेड, शुड वी गो अहेड, यस हियर वी गो। सो यहाँ से आपका ग्रे मैटर क्लियर हुआ, व्हाइट मैटर क्लियर हुआ, और भी कुछ मैटर होगा तो भाई को बोलना, ठीक है, मैटर भाई सेटल कर देगा, लेकिन दैट मैटर शुड बी बिटवीन यू एंड अनअकैडमी, राइट। आई एम इंटरन्यूरॉन, आप हो सेंसरी न्यूरॉन, अनअकैडमी है ब्रेन, और इन बिटवीन मैं आपको एज अ इंटरन्यूरॉन एक्ट करूंगा, या आई कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मोटर न्यूरॉन, ओके। हाँ सुजीत, दैट पाया मैटर, उस पर भी हम आएंगे, डोंट वरी, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन, ओके। यस, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, दैट वी विल डिस्कस सून। यहाँ पे ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, मोटर नर्व फाइबर, सेंसरी नर्व फाइबर, इंटरन्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन एंड अफरेंट न्यूरॉन। वी आर गोइंग अहेड। नाउ नर्वस सिस्टम जो है हमारी, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। Okay, number one, this nervous system is divided into either central nervous system and peripheral nervous system। इसका सिंपल सा मीनिंग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको नर्व्स मिलेंगी which are spread across body, which are spread across body, ठीक है।
क्लियर। सो नर्व्स को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे मेरे फेस पे नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेरे नेक पे नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेरे हैंड्स में नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेरे चेस्ट, मेरे स्टमक पे नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेरे बैक में नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेरी पूरी स्किन में नर्व्स है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेरे अपर लेग में, लोअर लेग में, फीट में, जहां जहां पे नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन छोड़कर जहां जहां आपको नर्व मिलेगी, that nerve is a part of peripheral nervous system. That's why we use the word peripheral. और central nervous system में सिर्फ वो न्यूरॉन आते हैं which are present in the brain. So your brain is part of central nervous system, and those neurons which are present in the spinal cord. So your spinal cord is part of the central nervous system. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड छोड़कर बॉडी में जहां जहां पे आपको नर्व्स मिलेगी, ईच एंड एवरी नर्व इज जस्ट अ मिनट गाइस, fine. So each and every nerve that is present outside brain and spinal cord, that nerve is part of the peripheral nervous system. तो देखिए आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। प्रीति पांडे सर, इस पैरालिसिस में एंड नॉर्मल पैरालिसिस में क्या डिफरेंट है? दोनों में कुछ डिफरेंट नहीं है प्रीति। ये जो पैरालिसिस है, जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नर्व्स अगर डैमेज होने की वजह से अगर पैरालिसिस हो रहा है तो दैट इज परमानेंट। बट अगर पैरालिसिस हमारे ब्रेन में कहीं पे ब्लीडिंग हुई है, उसकी वजह से ब्रेन का पार्ट जो हैंड को कंट्रोल करता है वो अगर प्रॉब्लम में है तो वो रिपेयर हो सकता है। बस हमें उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देना है तो वो रिपेयर हो सकता है। लेकिन नर्व की डैमेज की वजह से अगर पैरालिसिस है तो दैट इज परमानेंट। ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी है और सोमैटिक में भी है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द सोमैटिक। बट मैं बात करते वक्त मेरे हार्ट बीट हो रहा है, मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, या फिर मेरी ये जो आपकी आईलिड्स है मेरी, ये ब्लिंक हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तीन है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक। तो चलिए क्लियर। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका मोटर भी आता है और सेंसरी भी आता है। मोटर के फिर दो टाइप होते हैं, एक ऑटोनॉमस है और दूसरा सोमैटिक है। ऑटोनॉमस के फिर तीन टाइप होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड एंटेरिक। दैट्स इट। ओके, इस पे हम वापस आते रहेंगे, बार बार आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस स्लाइड से आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है और पीएनएस में नर्व्स है। गोइंग अहेड, now this is central nervous system. Brain is part of the central nervous system, so central nervous system. Spinal cord is part of the central nervous system, so central nervous system. लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे, nerves which are starting from the spinal cord, or many nerves that directly start from the brain also, these nerves which are going to different parts of our body, you can see they are part of the peripheral nervous system. So nerves are part of the peripheral nervous system, ganglions are part of the peripheral nervous system. We are going ahead now. our brain, अब हम डिस्कस करेंगे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेन है वो ब्रेन। अब हम उस ब्रेन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो ब्रेन के केस में आवर ब्रेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। आपने देखा होगा इन एक्सीडेंट, अगर हमारा लेग कट हो जाए, हैंड कट हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन इफ देयर इज अ डैमेज टू ब्रेन, it either leads to death or it either lead to a life which is not worthy living, right? So the first and most important protective, because brain is important, so we need to protect it. So first and most important protective layer or protection that is given to brain is the skull. ये आप देख लीजिए, कितने लोगों को इससे डर लगता है? डर लग रहा है कितने लोगों को? डर कितने लोगों को लग रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने ये देखी हुई है, ठीक है। सो दिस स्कल, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस स्कल. दिस स्कल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर ब्रेन. सर व्हाई दैट स्कल लाफिंग ऑल द टाइम? नो, दैट स्कल इज नॉट लाफिंग. लाफ हम इससे करते हैं, ये मसल्स हैं हमारे, क्या कहते हैं इनको? गाल कहते हैं ना, और लिप्स, इनको हम मसल की हेल्प से
मूव करते हैं तो दैट वी फील लाफ। लेकिन नॉर्मली अगर आप इसको रिमूव कर दोगे ना पूरी स्क्रीन को, तो स्कल ऐसे ही दिखेगी, वो हंस नहीं रही। ठीक है, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें से बता देता हूँ, उनको बस याद रखिए। ठीक है, दांत दिखा रहा है बस @ अनिकेत, यस यस यस। ओके, मैं कुछ बोन्स आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद रखने। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन यू नीड टू रिमेंबर इज मैंडिबल। ये जो मैंडिबल है, ये मैंडिबल है, जिसमें मेल्स को जो बियर्ड आती है ना, मेनली मैंडिबल बोन के ऊपर बियर्ड है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये नोज के साइड में, दिस इज मैक्सिला। इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट है ना, देखिए आपका ये बोन है, आपका टेम्पोरल बोन होना चाहिए, राइट। ये टेम्पोरल बोन और मैंडिबल और मैक्सिला, इनके बीच में ये जॉइंट है ना, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स। These are one of the strongest joint. तो आपको मैंडिबल से लिख के याद रखना है, one of the strongest joint. Why jaw pains while laughing? Because there are nerves, that's why it pains. रमनदीप। ओके, दूसरा जो आपको यहाँ पे याद रखना है, let me see, हमारे ईयर की बोन्स इन्होंने यहाँ पे शो नहीं की, लेट इट बी। बस मैंडिबल और मैक्सिला याद रखिए, रेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे चलिए, दिस इज स्कल। ओके, अब स्कल तो बोनी प्रोटेक्शन है, स्कल गिव्स प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ बोन, या इट इज अ बोनी प्रोटेक्शन। अब इस बोन के बियॉन्ड भी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दिया गया है। इट इज गिवन बाय दीज 3 स्ट्रक्चर्स, इन्हें कहा जाता है मेनिंजेस। दीज आर मेनिंजेस, और अगर इन मेनिंजेस का इन्फेक्शन हुआ तो उस डिसीज को हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। जापानीज एनसेफलाइटिस है ना, मेनिंजाइटिस, जापानीज एनसेफलाइटिस या जेई वायरस जो है ना, जापानीज एनसेफलाइटिस वायरस, इट एक्चुअली इन्फेक्ट्स these meninges and then this virus through these meninges it enters into the brain. That's why जापानीज एनसेफलाइटिस में बेबी को अटैक्स आते हैं, ब्रेन रिलेटेड अटैक्स आते हैं। ठीक है, क्लियर। सो these are 3 meninges, हर एक इस meninges में ना स्पेस होती है, and that space is filled with the cerebrospinal fluid, SCF, cerebrospinal fluid से वो क्या होती है, फील होती है। क्लियर, अंडरस्टूड गाइस। सो मेनिंजेस एंड द cerebrospinal fluid, जो आउटर मोस्ट मेनिंज है उसे कहा जाता है ड्यूरा मैटर। आउटर मोस्ट मेनिंज इज ड्यूरा मैटर, एंड मिडल में है अरखनॉइड मैटर, and innermost a pia matter. This pia matter is directly in touch with the brain cell or brain tissue. Brain cell और brain tissue के साथ ये डायरेक्टली कनेक्शन में होता है या डायरेक्ट टच में होता है। ठीक है, सो समझ में आया। meninges, these are nothing but the protective layers that surround the brain. Beyond these meninges there is a skull. So पहले skull, फिर meninges, और meninges के बाद और एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर होता है, उसे कहा जाता है blood brain barrier. Means everything from the blood never enters into the brain cell. Brain cell वही चीजें लेती है which are useful to them. Nothing goes from the blood to brain directly. There is a barrier. उसे कहा जाता है blood brain barrier. Very few viruses or bacteria have qualities or capabilities to cross this blood brain barrier. It is a chemical barrier. ठीक है, देखिए पहले आपका फिजिकल बैरियर था स्कल, skull is a physical barrier. Then आपके आए meninges. These are the barriers which are basically tissue based barrier, dura matter, arachnoid matter and the pia matter. और उसके बाद आता है chemical barrier. Chemical barrier को हम कहते हैं blood brain barrier. ठीक है, सो इतना सारा प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को दिया गया है, और हम क्या करते हैं, what we do, हम हमारे ब्रेन की बिल्कुल केयर नहीं करते। वी शुड गिव ओनली दैट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन दैट विल हेल्प अस to become a better human being, that will help us to make our life better, that will help us to make our career, that will help us to make our family proud. हमने ब्रेन को वही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। हमारे ब्रेन को इतना सारा प्रोटेक्शन दिया गया है और हम ब्रेन को प्रॉपर फीड नहीं कर सकते। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, इफ यू वांट, देखिए जो ब्रेन सेल्स है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रेन सेल? ब्रेन सेल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल ब्रेन सेल्स न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन्स है ना, दे नीड एनर्जी, काम करने के लिए दे नीड एनर्जी, एंड न्यूरॉन्स को बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्रुक्टोज। नॉर्मल हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल दैट इज प्रेजेंट, इट कैन यूज ग्लूकोज
as a source of energy, but brain or brain cell or neurons of our brain they prefer fructose as a source of energy. इसीलिए जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं ना, बिकॉज योर ब्रेन वर्क्स अ लॉट, तो यू शुड प्रिफर ईटिंग फ्रूट, क्योंकि फ्रूट में जो स्वीट शुगर है ना, दैट इज फ्रुक्टोज. सो फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन. ठीक है, फ्रूट ईट करनी चाहिए. तो यू शुड फॉलो दिस, इट विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बेटर वे से परफॉर्म करने में हेल्प करेगा. क्लियर? तो आपको समझ में आ गया. प्रोटेक्शन गिवन टू द ब्रेन, स्कल. प्रोटेक्शन गिवन टू द ब्रेन, meninges. Protection given to the brain, blood brain barrier. We are going ahead. I hope you are getting it properly. अब ये जो हमारा ब्रेन है गाइस, ये जो हमारा ब्रेन है, वी डिवाइड दिस ब्रेन इनटू 3 पार्ट. एक होता है, उसे कहते हैं फोर ब्रेन. ये जो आपको दिख रहा है ना सामने, ये है आपका फोर ब्रेन. दूसरा होता है मिड ब्रेन. ये मिड ब्रेन आप एक्सटर्नली लोकेट नहीं कर सकते, लेकिन आपके स्कल के बैक साइड में एक प्रोट्रूडिंग पार्ट है, उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन. ये देखिए, दिस प्रोट्रूडिंग पार्ट, इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन. इस प्रोट्रूडिंग पार्ट के पीछे आपको मिलेगा मिड ब्रेन. ये रहा मिड ब्रेन. और इस मिड ब्रेन के नीचे जो आपको बोनी पार्ट नहीं है, आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होने से पहले और बोनी पार्ट जहां से एंड होता है, इसके बीच में आपको सॉफ्ट टिश्यू मिलेगा. मसल, स्किन और फैट का प्रोटेक्शन होता है उसे सिर्फ. वहां पे होता है आपका हाइंड ब्रेन. सो आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फोर ब्रेन विच इज प्रेजेंट एट द फ्रंट, then mid brain which is present between the forebrain and the hindbrain, and the third is hindbrain which is present behind. इस hindbrain को क्या कहते हैं पता है? छोटा मगज. गुजराती लोग उसे छोटा मगज कहते हैं, नॉर्थ इंडियन उसे छोटा दिमाग कहते हैं, महाराष्ट्रियन लोग उसे लहान मेंदू कहते हैं, और नाना पाटेकर उसे कहते हैं यहाँ नहीं मारना, यहाँ पे छोटा मगज होता है ना. नाना पाटेकर के बहुत सारे डायलॉग, यहाँ मत मारो, यहाँ पे क्या होता है, छोटा मगज होता है. क्यों पता है आपको? ये जो हिंड ब्रेन है ना, बिकॉज दिस हिंड ब्रेन डू नॉट हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्कल. इससे सिर्फ 2 प्रोटेक्शन है. एक तो मेनिंजेस का प्रोटेक्शन है और दूसरा है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर का. और इंस्टेड ऑफ स्कल इसके ऊपर प्रोटेक्शन है फैट का, इसके ऊपर प्रोटेक्शन है मसल का, इसके ऊपर प्रोटेक्शन है स्किन का, विच इज ईजी टू डिस्ट्रॉय. इस हिंड ब्रेन में आपके कार्डियक सेंटर है. तो हाइंड ब्रेन अगर डैमेज हो जाए तो हार्ट स्टॉप हो सकता है. हिंड ब्रेन में आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स है. तो अगर आपका हिंड ब्रेन डैमेज हो जाए ना, तो आपका रेस्पिरेशन स्टॉप हो सकता है. मतलब अल्टीमेट इमीडिएट डेथ हो सकती है पर्सन की, इफ दैट पर्सन्स हाइंड ब्रेन इज डैमेज्ड और इफ दैट पर्सन्स हाइंड ब्रेन इज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, दैट्स व्हाई यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल. ये ऐसे टपली मारने की बहुत लोगों को आदत होती है ना, ऐसे टपली मारते, बट पर्टिकुलरली कॉलेज और स्कूल में नहीं. ऐसा कभी मत कीजिए, इट कैन लीड टू डेथ. व्हाट्सएप पे एक इमेज आई थी, देखिए, वो वाटरफॉल पे एक लेडी खड़ी थी और एक बंदा ऊपर से ऐसा घसीटते हुए आया और उसकी वजह से वो लेडी गिर गई और सीधा वो ऐसे गिरी. यहाँ पे उसे डैमेज हुआ, उसकी इमीडिएटली डेथ हो गई. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर हिंड ब्रेन, otherwise it can lead to immediate death. So from this slide, what you need to remember, again it is important for your prelims, our brain is divided into 3 parts. फोर ब्रेन. इस बेचारे को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया भगवान ने? आई डोंट नो तनुजा देना चाहिए था. बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही क्रूशियल है, तो वो गलती है भगवान की. ठीक है, फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन. ठीक है, so this is all about the central nervous system and part of the brain. Then we are going to discuss what exactly forebrain is and what are the functions of forebrain. Then what exactly midbrain is and what are the functions of midbrain. Then what exactly hindbrain is and what are the functions of hindbrain. These are the functions of the brain. Then we will discuss about the spinal cord. Then we will discuss about autonomic nervous system. Also we will discuss about parasympathetic nervous system, sympathetic nervous system. ठीक है, ये पूरा डिटेल में. एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी हम डिटेल में करेंगे. आपका नर्वस सिस्टम पे अगर बेसिक पे गलती कर दी यूपीएससी ने, मेरे बच्चों को क्वेश्चन पूछकर, तो यूपीएससी ऐसा सर पीट लेगी कि यार मैंने क्यों पूछ लिया, इनको तो सबको आंसर आ गया. लेकिन वो सबको आएगा? बिल्कुल नहीं, उन्हीं को आएगा जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया है. क्लियर गाइज? तो नर्वस सिस्टम का आज के बाद आपका एक भी यूपीएससी प्रीलिम का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाएगा. दिस इज माय गारंटी. व्हाट यू नीड टू डू, अभी जो आपने ये सेशन अटेंड किया, इसी तरह से आपको नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है.
जो मैं कंडक्ट करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपको क्या नहीं भूलना है while subscribing to Unacademy guys, आपको ये कोड यूज करना है SKUS, it will give you 10% discount. And another very important information, if you get any call for the loan from Unacademy, ठीक है सर, CSF शॉक एब्सॉर्ब करता है, यस प्रीति पांड्रे, cerebrospinal fluid is responsible for absorbing shock as well as preventing infections of the brain. आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों, इफ यू गेट अ कॉल फॉर लोन, जैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आपको ऑफर मिलेगा दो कंपनीज की तरफ से, एजुकैंस और प्रोपेल नाम की दो कंपनीज है जिनका कोलैबोरेशन है अनअकैडमी के साथ। तो ये लोग जब आपको लोन के लिए कॉल करेंगे, यू कैन टेक दैट लोन, EMI पे आप लोन ले सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन वाइल टेकिंग लोन वो आपको बिना बताए कोई और कोड यूज करके आपका, हाँ पल्लवी शर्मा बिल्कुल 8 बजे की क्लास होगी, आपका आपके विदाउट इन्फॉर्मेशन वो अपने आप से ही कोई और कोड यूज करेंगे, दैट शुड नॉट हैपन। इवन इफ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ लोन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सम कंपनीज थ्रू Unacademy, इट इज मस्ट टू यूज SKUS कोड। आपको अगर वो कह रहे हैं कि ये कोड यूज नहीं कर सकते, जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल इंश्योर कि दिस कोड इज यूज्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी गाइज, though it is not important for you but it is important for me and as a my student। आपको अगर कहीं से भी लगता है कि my sessions are helping you to crack UPSC prelims to improve your studies, then it is very important कि आप खुद भी ये कोड यूज करें और आपके फ्रेंड्स को ये कोड यूज करने के लिए कहें। if you are taking subscription, if you are not taking subscription, you are already enjoying my free sessions on YouTube and on Unacademy, but there is more on plus related to other subject as well as related to my subject which is in structured format that will help you to crack UPSC CSE examination। okay guys, and जो नए स्टूडेंट है उनके लिए this is my telegram channel, what you need to do, you need to subscribe to this telegram channel ताकि अभी जो मैंने पढ़ाया ना इसकी PDF आपको इस telegram channel पे मिल जाएगी। लेकिन आज की PDF आज मैं अपलोड नहीं करूंगा 11:15 AM सेशन की, वो कल अपलोड होगी, दोनों आज की भी और कल की भी। और ये मेरा Unacademy का प्रोफाइल है, what you need to do, you need to download Unacademy learning app, open my profile, this is the link of my profile, follow me on Unacademy, dedicate your hats to me on Unacademy and don't forget to use SKUS code for 10% discount on Unacademy subscription। That's it for the day guys। और एक बात सर, कैन यू टेल मी द टाइमिंग्स एज आई एम न्यू टू दिस चैनल। ओके रितिका ठाकुर, देखिए जो मेरे सेशंस होते हैं, पर्टिकुलरली मेरे सेशंस होते हैं एवरीडे 8 AM ऑन Unacademy लर्निंग ऐप, जहाँ पे मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ एवरीडे 8 AM ऑन Unacademy लर्निंग ऐप। और दूसरा सेशन होता है मेरा 11:15 AM का यूट्यूब पे, और वो यूट्यूब पे कौन से चैनल पे होता है तो अभी आप देख सकते हो, लेट्स क्रैक UPSC CSE नाम का चैनल है, इस चैनल पे ये मेरा 11:15 AM का यूट्यूब का सेशन होता है। इसमें मैं मेनली साइंस टेक कवर करता हूँ, एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर करता हूँ और जियोग्राफी मैपिंग भी कवर करता हूँ। एंड थ्रू दिस आई एम इंश्योरिंग कि यू क्रैक UPSC प्रीलिम्स 2021 डेफिनेटली। ठीक है रितिका sir, what is the frequency of this class? Every day, Jill's Joes, every day, there is no holiday। if there is any emergency then only I take holiday, otherwise there is no holiday। ठीक है, आपको अगर कोई भी पर्सनल डाउट है तो यू कैन मैसेज मी ऑन Unacademy। मेरी Unacademy पे की प्रोफाइल पे आप जब जाओगे ना तो देर इज ऑप्शन टू मैसेज, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। देन आप इस टेलीग्राम चैनल पे भी सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। प्लस अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है थ्रू व्हाट्सएप, व्हाट यू कैन डू, यू कैन वॉच माई ओल्डर वीडियोज लाइक 1 or 2 month ओल्ड, उसके हर वीडियो के एंड में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो। दैट्स इट। Okay sir, every day you have live? Yes Jills Joes, every day twice in a day, 8 AM and 11:15 AM I am live। okay, I guess everyone's doubts are clear। I'm done with the today's session। thank you very much guys। so when we are meeting again, we are meeting tomorrow at 8 AM on Unacademy learning app again। till that time, bye bye, take care।